Hello, my dear student. Welcome you here in this lecture number 33. As you know, from lecture number 1 to 30, you will get the entire topic digestion and absorption. So do watch that earlier 30 videos. And after 30 videos, from 31st, we have started that breathing and exchange of gases. Okay? Respiratory system. So in the earlier two videos of this topic, we have seen the introductory part there and the respiratory organs of different organs also. Okay. Now we have to start the study of that human respiratory system. Human respiratory system, as you know, one of the very essential activity. It is responsible for taking inside the oxygen gas containing air and giving out the air containing CO2 gas. Okay, and we are terrestrial animals. We are using the air. तो यहाँ पे दो पार्ट हम देख सकते हैं. In the human respiratory system, we can have two parts actually. One is called as the conducting part, and the other is known as the part for exchange. Conducting part and the another is the part for exchanging part, gas exchanging part. Okay, or that is the respiratory part. That is the respiratory part. Okay, so conducting part भी बहुत ही important है. जहाँ पे एयर आता है, यहाँ पे रेस्पिरेटरी पार्ट में एक्सचेंज हो जाता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी ऑक्सीजन जो है वो जाएगा ब्लड में और जो CO2 है ब्लड ने लाया हुआ वो जाएगा एयर में. तो वो एक्सचेंज होता है, दैट इज द रेस्पिरेटरी पार्ट. और जो एयर आती है जाती है, हमारी जो ब्रीथ है वो अंदर आती है फिर बाहर जाती है. सो दैट इज पर्टिकुलर द कंडक्शन. तो वो कंडक्टिंग पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जब कंडक्टिंग पार्ट ब्लॉक होता है तो एयर कंटेनिंग ऑक्सीजन कैन नॉट गो टू द लंग्स, वो भी हम देखेंगे. तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन में जो पूरे पार्ट्स हम लर्न करने वाले हैं वो जो मैंने सिक्वेंशियली आपको बताए हैं, दैट फर्स्ट विल बी द नॉस्ट्रिल्स और एक्सटर्नल नेयर्स, second will be the nasal chamber, then third will be the pharynx, fourth will be the larynx, fifth will be the trachea, sixth will be the bronchi, then that internally bronchi divide into the bronchioles in the lungs, and then alveoli also, and very essential organs are the pair of lungs. तो इन पूरे पार्ट्स की जब हम जानकारी लेंगे डिटेल में, we will get the idea how the respiration occurs in our body. Okay? तो कौन से पार्ट मैंने बताया. देखो, ये पहले तो पूरे कंडक्टिंग पार्ट्स है, लंग्स तक. एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो मैंने कहा, दैट हैपन्स इन द लंग्स. पर बाकी जो पूरे पार्ट है, नॉस्ट्रिल्स और एक्सटर्नल नेयर्स, नेजल चेंबर, देन द थर्ड इज द फेरिंग्स. Nostrils, external nares, nasal chamber, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles. These all are the conducting parts. They are going to conduct the air. आने है जाना है, आना है जाना है, isn't it? देखेंगे हम. अब एक एक पार्ट से शुरू करेंगे जो हमको मालूम है. That nostrils, we are having a pair of nostrils there. Two openings are there just above the upper lip. ये जो हमारा अपर लिप है, अभी जो मेरे मुस्टैशेस है उसके जस्ट अपर, on the upper side we are having two openings there on that organ known as the nose. वो नोज कैसा भी होने दो, स्ट्रेट नोज होगा या चपटा होगा, isn't it? कैसा भी होने दो, लेकिन उसे दो ओपनिंग्स तो रहते हैं. चाइना वन देखो ना आप कैसे रहते हैं, चाइनीज पीपल, isn't it? तो नोज बहुत उनके स्मॉल है, पर है नॉस्ट्रिल्स तो है. सो पर्टिकुलरली द ओपनिंग ऑफ द नॉस्ट्रिल्स आर देयर जस्ट अबव द अपर लिप, एंड वी नो दैट the air
when we breathe in enters into the body through that nostrils, और पर्टिकुलरली एयर जो है वो नॉस्ट्रिल से ही आनी चाहिए. बहुत सारे लोग देखो पर्टिकुलर सीनियर्स जब सोते हैं और जब गाढ़ी नींद उनको लगती है तो उनका माउथ ओपन रहता है और माउथ से भी ब्रीथ करते हैं. isn't it? So that should not happen. तो ये नॉस्ट्रिल से ही आना चाहिए. पर्टिकुलरली द एयर शुड गो इनसाइड एंड गो आउटसाइड थ्रू द नॉस्ट्रिल्स. इसके लिए दो नॉस्ट्रिल्स है, दो ओपनिंग्स है, एक्सटर्नल नेयर्स. दे आर एंटरिंग इनटू व्हाट? नेजल चेंबर. अब ये नेजल चेंबर क्या है? पर्टिकुलरली ये नोज नाम का जो ऑर्गन हमारे पास है, वी आल्सो कंसिडर दैट एज द सेंस ऑर्गन. वेरी इंपॉर्टेंट. दिस नोज इज देयर divided by a vertical partition into two cavities known as the internal nares. known as the nasal chamber. उसे nasal chamber कहते हैं. ये दो नॉस्ट्रिल अगर देखेंगे हम, बार बार हम उंगली डालते हैं, उसमें टाइम पास एक्टिविटी रहती है बहुत सारे लोगों की, isn't it? तो लेकिन बेकार, और वही उंगली बाद में मुंह में भी डाल देते हैं, isn't it? तो वो भी बेकार है. तो ये नॉस्ट्रिल्स जो है वो ओपन होने के बाद अंदर हम देखेंगे इधर एक पैसेज है, एटलीस्ट लिटिल फिंगर तो जाएगी हमारी, और इधर एक पैसेज है, एंड दैट पैसेज आर कॉल्ड एज द नेजल पैसेज. सो दैट नोज हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू कंपार्टमेंट्स इंटरनली बाय ए नेजल सेप्टम दैट इज फॉर्म बाय दैट कार्टिलेज देयर वी नो. वो कार्टिलेज से बना हुआ है पर्टिकुलरली, और वो कार्टिलेज कैसा है? इलास्टिक कार्टिलेज है. देखो आप उसको ऐसा हिला सकते हैं, isn't it? That can be just moved there internally. देखो आप हाथ लगा के, सॉफ्ट है वो, that is not very hard. And that nasal partition is there, that is dividing that internal cavity of the nose into two chambers. Okay? अब ये मिडल जो नेजल पार्टीशन आता है उसे मेसेथमॉइड भी कहते हैं. एक वर्ड जस्ट ध्यान में रहने दो अपने, दैट पर्टिकुलरली मेसेथमॉइड इज द वर्ड यूज फॉर व्हाट पर्पस? फॉर नेजल पार्टीशन. ये जो नेजल पार्टीशन है उसके लिए भी यूज होता है. और नेजल चेंबर जो है कॉन्ची ऐसा भी कहते हैं. ओके, अब ये डिवाइड हो गया है. अभी नेजल चेंबर में क्या होता है? देखो, व्हेनेवर वी टेक द ब्रीथ इन, पर्टिकुलरली द लाइनिंग्स इनसाइड द नेजल चेंबर आर मेड अप ऑफ such kind of the epithelium there, they are going to act very properly there, and they are going to make that nasal chamber air warm. It will be warm there particularly, और उसे उसको फिल्टर करना भी आता है. यानी if some dust particles have entered there, they will be trapped in that nasal chamber only. डस्ट पार्टिकल्स आते हैं तो वो भी उसे ट्रैप किया जाता है. सो दैट एयर एंटरिंग इनसाइड इज फिल्टर्ड एंड मेड वार्म बिकॉज ऑफ दैट नेजल चेंबर. ओके, इनसाइड द नोज, एंड देन दैट ओपन्स इनटू द फेरिंग्स with the help of the opening called as what? Internal nares. नेजल चेंबर के बाद में नेजल चेंबर जो फेरिंग्स में आएगा वो किसकी सहायता से आएगा? Internal nares. It will enter into the pharynx through internal nares. Okay? ये internal nares से pharynx में आएगा. वो छोटे छोटे ओपनिंग होते हैं. समझ में आता है? ब्रीथ इन हमने किया है, एयर को फिल्टर भी किया है, वहां पे एयर को वार्म भी बना दिया है, एंड देन इट इज गोइंग इनटू द इंटरनल नेयर्स, एंड थ्रू द इंटरनल नेयर्स इट इज पास इनटू द फेरिंग्स. हमें मालूम है फेरिंग्स जो है ये बहुत ही अहम पार्ट है, isn't it? ये थ्रोट रीजन में जो है फेरिंग्स, इस फेरिंग्स को अभी 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है. वन इज कॉल्ड एज द नेजोफेरिंग्स. वन इज कॉल्ड एज व्हाट? नेजोफेरिंग्स. Other is called as the oropharynx,
and third is called as the laryngopharynx. Okay, the pharynx may be divided into these three parts. कौन से नेजोफेरिंग्स, जो इमीडिएटली जब नेजल ओपनिंग्स होते हैं इंटरनल नेयर्स के, उस पार्ट को, एंटीरियर पार्ट को फेरिंग्स के कहते हैं नेजोफेरिंग्स. ओके, उसके बाद में ओरोफेरिंग्स. हमें मालूम है हमारा जो ओरल कैविटी है, बगल कैविटी, दैट आल्सो ओपन्स इनटू द फेरिंग्स. वो भी ओपन होता है फेरिंग्स में. तो कैसे ओपन हो जाएगा वो? दैट विल ओपन इनटू द ओरोफेरिंग्स. उस पार्ट को ओरोफेरिंग्स कहते हैं. दैट इज कनेक्टेड विद द इसोफेगस और गलेट, जिसको हम अन्न नलिका कहते हैं, उसको वो कनेक्ट हो जाता है वो पार्ट. ओके, एंड वॉट एवर द फूड वी विल स्वेलो, दैट विल बी अलाउड टू गो देयर इनटू दैट गलेट. खाना है, पीना है, जो भी है, दैट पार्ट विल गेट स्वेलोड इनटू द दैट इसोफेगस. वो पार्ट है ओरोफेरिंग्स. और उसके बगल में जो है वो लैरिंगोफेरिंग्स. क्योंकि ये दो ट्यूब हमने बताया था डाइजेशन जब हम पढ़ रहे थे, ये दो ट्यूब जो होते हैं वो साइड बाय साइड होते हैं. वन इज देयर इसोफेगस, अदर इज देयर ट्रैकिया. तो जो इसोफेगस में जाने वाला है वो है, उसे गलेट भी कहते हैं, वो है ओरोफेरिंग्स. और जो विंड पाइप में जाने वाला है वो है लैरिंगोफेरिंग्स. So clear cut separation is there. Okay, so we have to learn all these parts very carefully and in detail. तो अब तक का पार्ट आपको ध्यान में आया है क्या? देखो फिर एक बार. और ये इंपॉर्टेंट चीज ऐसी है, ये फिगर जो मैंने यहाँ पे निकाली है, ये फिगर खुद निकालने का भी प्रयास करो. यहाँ पे पूरे नेम्स मैंने दिए हैं along with the labels. So try to sketch that figure by your own. और हम देखते जाएंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में other parts also I will explain. So till then, revise these parts what we are discussing in this lecture. Definitely you are getting benefited by these lectures. So do like, share my video and also subscribe to my channel. Thanks a lot.